قسمت پھوٹی ہے جو اتنی سی جان کے ساتھ سکندر کی تیسری بیوی بننے جا رہی ہے. اس کے سامنے پکی عمر کی عورت نہ ٹک پائے. یہ کیا چیز ہے؟ مائیوں میں آئی عورتوں کی باتیں سنتے حیا کا سر مزید جھک گیا. اس کے بوڑھے باپ کو کاروبار میں 10 لاکھ کا نقصان ہوا تو ادھار واپس مانگنے والوں نے اس کا جینا حرام کر دیا. تبھی مجبوراً اسے اپنی کمسن بیٹی کا ہاتھ 35 سالہ سکندر کو دینا پڑا، جس کی پہلی 2 بیویاں شادی کے دوسرے دن ہی میکے چلی گئی. لیکن اس بات کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی. وہ بستر پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی جب سکندر مرزا نے کمرے میں آتے نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گود میں بھرا. یہ جمال کو کوئی اور طریقہ نہیں ملا تھا اپنی جوان لڑکی کو اس دنیا سے روانہ کرنے کا جو اس آدمی کے ساتھ اس کی شادی کروا رہا ہے. جب حیا نے جملہ سنا تو وہ بے اختیار چونک گئی. اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے سامنے بیٹھی عورتوں کی طرف اٹھیں، پھر فوراً جھک گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسی محفلوں میں دلہن کا کسی کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا، مگر کانوں میں پڑنے والے الفاظ کو نظر انداز کرنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا. حیا کی شادی شہر کے سب سے امیر اور بااثر خاندان کے وارث سکندر مرزا سے ہونے جا رہی تھی. حیا کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی. اس کی ماں کئی سال پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی. جمال نے ماں باپ دونوں کا فرض نبھانے کی پوری کوشش کی تھی. حیا کو کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی. مگر آج وہی باپ اپنی بیٹی کو قرض کے بدلے کسی دوسرے کے حوالے کر رہا تھا، کیونکہ سکندر مرزا کا قرض واپس کرنا جمال کے بس میں نہیں رہا تھا. دوسری عورت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، سکندر مرزا کے آگے تو پکی عمر کی عورت بھی نہ ٹکے. سنا اس کی پہلی 2 بیویاں پہلی رات کے بعد ہی بھاگ گئی تھی. ایک تو ہر وقت توبہ توبہ کرتی رہتی تھی، کہتی تھی میں اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گی، یہ بیچاری تو ابھی عمر میں بھی کتنی چھوٹی ہے، اس کا کیا بنے گا. حیا اب سمجھ چکی تھی کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا. ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں. وہ سر جھکائے بیٹھی رہی کیونکہ اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. لوگ سکندر مرزا کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ آخر اس آدمی میں ایسا کیا تھا جو ہر زبان پر خوف بن کر بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی جلاد ہو جو عورتوں کو زندہ نہیں چھوڑتا. سکندر مرزا کی عمر 35 سال تھی، مگر وہ اپنی عمر سے کئی کم دکھائی دیتا تھا. 6 فٹ قد، چھوڑے کندھے، مضبوط جسم، گہری سے آنکھیں، پراعتماد چہرہ. اس کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ ایک نظر دیکھنے والا دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، مگر اسی چہرے پر ایسی پراسرار خاموشی بھی تھی جسے اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ وہ نیک انسان ہے یا خطرناک. حیا بھی مائیوں میں بیٹھی تھی. شادی میں صرف 2 دن باقی تھے. ایک عمر رسیدہ عورت نے جمال کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیٹی کی زندگی بچا لو، ایسے اس حویلی میں مت بھیجو، وہاں سے کوئی خوش واپس نہیں آتا. جمال نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر بنا کچھ کہے دوسری طرف چل دیا جیسے سے وہ بات سنی نہ ہو. اس رات حیا دیر تک جاگتی رہی. اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. ایک ہی خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ صرف 2 دن بعد وہ سکندر مرزا کی بیوی بن کر اس حویلی میں چلی جائے گی. پھر وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ 2 دن اسی بے چینی میں گزر گئے. ہر گزرتا لمحہ حیا کو اس حقیقت کے مزید قریب لے کر آ رہا تھا جسے وہ مسلسل خوف زدہ تھی. گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی. مہمانوں کی آمد جاری تھی. ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، مگر ان سب آوازوں کے درمیان صرف ایک دل ایسا تھا جو خاموشی کے ساتھ ڈوب رہا تھا. شادی والے دن صبح سے تیار کرنے والی عورتیں آ گئیں. سرخ لہنگا ان کے وجود پر اس طرح سجایا گیا جیسے کسی شہزادی کو رخصت کیا جا رہا ہو. زیورات ایک ایک کر کے پہنائے گئے، ہلکا سا سنگھار کیا گیا. پھر جب اس نے چند لمحوں کے لیے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے. اتنی خوبصورت شاید وہ پہلے کبھی نہیں لگی تھی.
मगर चेहरे पर मौजूद उदासी किसी भी सिंगार से छुप नहीं रही थी। निकाह खामोशी के साथ मुकम्मल हो गया। इस खानदान में दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाने की रस्म नहीं थी, इसलिए हया ने अपने शौहर को अभी तक देखा भी नहीं था। निकाह के फौरन बाद इसके सर पर लंबी चादर डाल दी गई। औरतों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर रुखसती का वक्त आ गया। जमाल ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। इसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो एक लफ्ज भी ना बोल सका। हया ने खामोशी से अपने बाप के हाथ चूमे, फिर गाड़ी में बैठ गई। काफी देर के सफर के बाद गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। भारी भरकम दरवाजे खुले, अंदर कई लोग मौजूद थे, मगर हया कुछ भी ना देख सकी क्योंकि चादर अब भी इसके चेहरे पर थी। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सहारा देकर अंदर ले जाया गया। लंबे बरामदे अबूर किए गए, कई सीढ़ियां चढ़ी गईं, फिर आखिरकार एक कमरे का दरवाजा खोला गया। चादर हटाई गई तो इसने पहली बार अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कमरा गैर मामूली तौर पर शानदार था। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, कहीं मामूली सी बेतरतीबी भी नजर नहीं आ रही थी। फर्नीचर कीमती था, दीवारों पर नफीस सजावट थी। पर्दों से लेकर रोशनियों तक हर चीज से यही महसूस होता था कि इस कमरे का मालिक अपनी जिंदगी में किसी किस्म का समझौता करना पसंद नहीं करता। हया को बिस्तर पर बिठा दिया गया। इसका भारी लहंगा चारों तरफ फैल गया। घूंघट दोबारा इसके चेहरे पर डाल दिया गया। दरवाजा बंद हुआ। कदमों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गईं। अब पूरे कमरे में सिर्फ खामोशी बाकी रह गई। हया ने अपनी उंगलियों को मजबूती से एक दूसरे में जकड़ लिया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। वो बार बार इन्हीं बातों को याद कर रही थी जो गुज़श्ता 2 दिन से इसके कानों में गूंज रही थी। पहली दोनों बीवियां भाग गई थीं। कोई इस हवेली से खुश वापस नहीं आया था। सिकंदर मिर्जा आम आदमी नहीं था। वो अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, मगर इस इंतजार में खुशी नाम की कोई चीज शामिल नहीं थी। सिर्फ खौफ था, बेयकीनी थी, एक अनजाना सा सवाल था कि इस दरवाजे के खुलते ही इसकी जिंदगी किस रुख पर मुड़ने वाली थी। सिकंदर मिर्जा ने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। हया इसी तरह बिस्तर पर बैठी थी जैसे कई घंटों से अपनी जगह से हिली ना हो। इसका घूंघट अब भी चेहरे पर था, हाथ अपनी गोद में जड़े हुए थे। सांस भी इस कदर धीमी चल रही थी कि जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। सिकंदर ने एक लम्हे के लिए खामोशी से इसे देखा, फिर दरवाजा बंद किया। अपने कदम मामूल के मुताबिक आगे बढ़ाए। हया ने घूंघट की ओट से पहली बार अपने शौहर को गौर से देखा। लंबा कद, मजबूत जिस्म, पुरएतमाद चाल, संजीदा चेहरा, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था। मगर इसके चेहरे पर इस वक्त ना गुस्सा था ना सख्ती। इसने बिना कुछ कहे अपनी शेरवानी उतारी, साफ सुथरे अंदाज में एक तरफ रखी, फिर सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। हया का दिल अब भी जोरों जोर से धड़क रहा था। वो हर आवाज पर चौंक रही थी। अचानक बाथरूम के अंदर से मोबाइल फोन बजने की आवाज आई। चंद लम्हों बाद सिकंदर ने कॉल वसूल कर ली। बाथरूम का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए इसकी आवाज साफ बाहर आ रही थी। वो मामूल के अंदाज में बोला, आज तो पहला दिन है, देखना कैसे अपनी औकात पे आ जाएगी। फिक्र नहीं करो, तुम शुरू शुरू में थोड़ी अरी करेगी, लेकिन बाद में खुद ही सीधा कर लूंगा, और अगर नहीं सीधी हुई तो फिर मुरम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे ही होता है, पहले भी तो ऐसे ही हुआ था, और जाहिर है फिर इस तरह के कामों में सख्ती तो करनी पड़ती है, और अगर नहीं काम आई तो दूसरी ले आएंगे। ये अल्फाज हया के कानों में पड़े तो जैसे इसके जिस्म से जान ही निकल गई। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। ऐसे लगा अब हर वक्त वो बात सच साबित होने वाली है जो औरतें गुज़श्ता 2 दिन से करती आ रही थीं। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश करने लगा, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, मुरम्मत कर दूंगा, सख्ती करूंगा, दूसरी ले आऊंगा। इसकी उंगलियां बुरी तरह कांपने लगी, होंठ खुश्क हो गए, सांस लेना मुश्किल होने लगा। ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे की सारी हवा खत्म हो चुकी हो। इसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगा, मगर इसे खुद अंदाजा भी नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा था।
चंद लम्हों बाद सिकंदर बाथरूम से बाहर आया। वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक पुरसुकून नजर आ रहा था। इसने तौलिया एक तरफ रखा, आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल दुरुस्त किए, फिर अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के करीब आ गया। वो हया के सामने बैठ गया। जेब से निकाला हुआ डिब्बा खोला तो इसमें खूबसूरत सोने के कंगन रखे हुए थे। इसने नरमी से हया का घूंघट उठाया। चेहरा देखते इसकी पेशानी पर शिकन आ गई। हया का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, होंठ मुसलसल कांप रहे थे, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो हैरत से बोला, क्या हो गया तुम्हें? हया ने फौरन सर हिला दिया, जैसे कहना चाहती हो कुछ नहीं हुआ, मगर इसके होंठों से आवाज न निकल सकी। सिकंदर ने चंद लम्हे से गौर से देखा, फिर नरम लहजे में कहा, क्या बात है, डर रही हो? खाना खाया तुमने? कोई मसला है? हया खामोश रही। इसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ माहौल बदलने की कोशिश की। बोल तो सकती हो ना, वैसे गूंगी बीवी रखने का भी मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बातें करोगी तो अच्छी लगोगी। ये कहते हुए इसने आहिस्ता से इसकी कलाई अपने हाथ में ली ताकि इसे कंगन पहना सके, मगर अगले लम्हे वो चौंक गया। हया का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। ऐसे फौरन कंगन एक तरफ रख दिए। इसी लम्हे हया ने अपने गले पर हाथ रखा, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। सिकंदर के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन उठा, मेज से पानी का ग्लास उठाया, फिर इसके करीब आकर निहायत एहतियात से इसे पानी पिलाया। हया के हाथ इतने कांप रहे थे कि ग्लास भी सही तरह नहीं पकड़ा जा रहा था। सिकंदर ने ग्लास को थामे रखा ताकि पानी गिरने ना पाए। फिर इसने आहिस्तगी से इसे सहारा दिया और अपने करीब कर लिया। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए निहायत धीमे लहजे में बोला, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आराम से सांस लो। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई खौफजदा बच्चे को तसल्ली देता है। हया खुद हैरान थी। जिस आदमी से वो चंद लम्हे पहले तक सबसे ज्यादा खौफ खा रही थी, ऐसी की बाहों में इसे पहली बार थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। सिकंदर ने महसूस कर लिया कि ये मामूली घबराहट नहीं, किसी बात ने इसे बुरी तरह डरा दिया। इसने बहुत नरमी से पूछा, किसी ने बोला तुम्हें कुछ? किसी ने बोला था? हया ने बड़ी मुश्किल से पहली बार जुबान खोली। वो औरतें हवेली से आई थी, मेरा सामान लेकर कह रही थी कि आप औरतों को खा जाते हैं। बात मुकम्मल करते हुए वो खुद भी उलझ गई। इसे समझ नहीं आया क्या कहे, मगर सिकंदर पूरी बात समझ चुका था। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर गहरा सांस लिया, जैसे किसी पुरानी बात ने इसे अंदर तक थका दिया हो। इसने आहिस्ता से कहा, पहले तुम आराम करो। फिर बोला, तुम ये कपड़े वगैरह बदलो, इसकी वजह से ये भी तुम्हें गर्मी लग रही है, और बैठो मैं आता हूँ। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही हया ने एक लंबी सांस ली। कमरे में पहले जैसा खौफ अब बाकी नहीं रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना भारी लिबास बदला, फिर वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। सारे दिन की थकन, ज़हनी दबाव, मुसलसल खौफ अब एक साथ इस पर गालिब आने लगा। आंखें बंद हुई तो इसे खुद भी एहसास न हुआ कि वो कब गहरी नींद में चली गई। सुबह सूरज की नरम रोशनी पर्दों के दरमियान से कमरे में दाखिल हुई तो हया की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। चंद लम्हे वो खामोश लेटी रही, फिर अचानक इसे एहसास हुआ कि वो तो रात को न जाने कब सो गई थी। इसका दिल एकदम घबरा गया। इसे याद आया कि सिकंदर ने इसे कपड़े बदलने का कहा था। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद क्या हुआ, सिकंदर वापस आया भी था या नहीं, इसे कुछ मालूम नहीं था। वो फौरन उठकर बैठ गई, नजरें बेख्तियार बिस्तर पर दौड़ी, फिर कमरे के दूसरे हिस्से में गई, मगर सिकंदर कहीं नजर नहीं आया। वो एक गरीब घर की बेटी थी। इसे बचपन से ये सिखाया गया था कि ससुराल में हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। मामूली सी गलती भी इंसान की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगी, फिर अलमारी से कपड़े निकालकर तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट बाद वो तैयार होकर बाहर आई। अभी वो अपने दुपट्टे की प्लेटें दुरुस्त कर ही रही थी कि अचानक नीचे से किसी की ऊंची आवाज में बोलने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। ये आवाज सिकंदर की थी। इसने जिंदगी में पहली बार इसकी आवाज में इतना गुस्सा महसूस किया था। तजस्सुस बेख्तियार इसके कदम दरवाजे की तरफ ले गया।
वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सीढ़ियों के करीब आ गई, जहां से नीचे का मंजर भी साफ दिखाई दे रहा था। वसी हॉल में सिकंदर खड़ा था, इसके सामने इसकी